गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna Mataji. We can continue Kirtan for some more minutes. Jayo Radha Madhava Kunj Bihari, 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 Jayo Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Jayo Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Jayo Radha Madhava Kunj Bihari, Jayo Radha Madhava Kunj Bihari, Jayo Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Yashodanandana Bhaj Jana Ranjana, Yashodanandana Bhaj Jana Ranjana, Yamuna Tira Madhchari, Jayo Radha Madhava Kunj
Krishna. Thank you Rashi Mataji, Vinod Prabhu, and thank you so much Gaurangi. Gaurangi बिल्कुल expert हो गई कीर्तन में, मृदंग में, करताल में. So wonderful. Prabhupada bless all of you. Thank you so much. So now continuing our Guru Ashtakam sessions, we have His Grace Rasanand Prabhu with us. So we heartily welcome Rasanand Prabhu and chant loud Hare Krishna Mahamantra to welcome him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rasanand Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Yes. Hare Krishna Prabhuji. Prabhu, he will take a couple of more minutes to join. Okay. Yes. Who would remember now what happens in the last session? Who remembers? Who will share? Shema Mataji, Kantaradhika Mataji, you're raising hand or you raised to pick something? Okay. I said, बहुत लंबा हाथ उठाया है. Yes. I was picking up the book, Prabhuji. Hare Krishna, Nandvat Pranam. मुझे लगा कि ये सबसे पहले हाथ उठाया है. No, kids should answer. Oh, there are so many beautiful kids. Okay, Mataji. Okay, beautiful kids. Which one beautiful kids will reply? What we read in the last session? Yes, Parmeshi Mataji. Instead of kid, we have mother who's answering Mataji. Yes, Parmeshi हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. यस, हम प्रभु जी हमने प्रसादम के ऊपर किया था लास्ट क्लास. सो जिसमें प्रभु जी ने बताया था कि जो प्रसादम के थ्रू हम लोग वैष्णवों को सर्व कर सकते हैं. अगर कभी हम सभी वैष्णवों की इस तरह से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन प्रसादम के थ्रू हम सभी वैष्णव के और एक साथ बहुत सारे वैष्णव की सेवा कर सकते हैं. कल जब गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन चल रहे थे तो many devotees इवनिंग सेशन के अंदर they were sharing how Guru Maharaj used to feed them prasadam or how they would individually take care that everybody had good prasadam, and that trait everybody remembers about Guru Maharaj, especially in Mayapur, that Guru Maharaj will call all the GPCs and then invite them over and just feed prasadam. And you see they all remember just that part, they remembered, और हिज हॉलीनेस जयपताका स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं हेल्थ की वजह से जा भी नहीं पाता था, बट प्रसादम वो मेरे रूम में पहुंचा दिया करते थे. So मींस हमारा कल्चर है, ये वैष्णव कल्चर है प्रसादम सर्व करना. Yes, Mataji. Okay, anybody else remember what we shared, what we all heard last time? हमने पढ़ा कि किस प्रकार से 4 प्रकार के प्रसाद होते हैं. एक जो चतुर्विधा, एक जो होते हैं जो चबाए जाते हैं, एक जो होते हैं जो पिए जाते हैं, और एक होते हैं जो लिक करते हैं, और एक जो आई थिंक जो चूसते, व्हाट डू वी से दैट, सक करते हैं. यस, राइट. सॉरी प्रभु, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी, प्रसाद नहीं भोगा. नहीं, प्रसाद माता जी, ही सेइंग प्रसाद. भगवान को तो भोगा सर्व किया जाता है ना, भगवान को प्रसाद. जो ऑनर करें माता, हमें भगवान से लेने तो अपने लिए देना है. और रसनंद प्रभु से हरे कृष्णा प्रभु जी. So most welcome, and so now over to His Grace Rasanand Prabhu. Yes, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Om Agyanati Viranam Vanashkaka Chakshur Unmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Vishatarine Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhya Evachan Patitanang Pavanebhyo Vishwabhyo Namo Namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम गुरुवाष्टकम से चर्चा कर रहे थे। गुरुवाष्टकम के 4 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। एंड देन आज हम लोग चर्चा करेंगे 5th वर्स, श्री राधिका माधवयो और पारा। तो फर्स्ट श्लोक में आध्यात्मिक गुरु क्यों इस भौतिक संसार में आते हैं, त्रणाय कारुण्य घना घनात्यम, कि भौतिक जो बद्ध जीव है उनको उद्धार करने के लिए आध्यात्मिक गुरु जो गुणों की समुद्र है, वो आध्यात्मिक गुरु भौतिक संसार में आते हैं। एंड देन सेकेंड श्लोक में आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, कैसे उद्धार करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में बताते हैं आध्यात्मिक गुरु त्राणाय परित्राण, उद्धार करने के लिए आते हैं। और सेकेंड श्लोक में बता रहे हैं कि क्यों, कैसे उद्धार करते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता। तो कलयुग में जो जीव को उद्धार करने का एक ही तरीका है, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से ये हरिनाम संकीर्तन दिए, आध्यात्मिक गुरु वो करते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य करते हैं और पादित्र इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कीर्तन करते हैं। और थर्ड श्लोक में ये बता रहे हैं कि और कैसे उद्धार करते हैं, श्री विग्रह आराधना सिखाते हैं आध्यात्मिक गुरु उनके शिष्यों को। और युक्त से भक्तन शनि जुंजतो, और आध्यात्मिक गुरु खुद भगवान की विग्रह सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, और साथ ही साथ उनके शिष्यों को भी भक्तान शनिजुंजतो, शिष्यों को भी सेवा में लगाते हैं भगवान की विग्रह सेवा। देन फोर्थ श्लोक में लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की, विग्रह सेवा में एक इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान को भोग लगाना। तो इसमें प्रसाद इसलिए बता रहे हैं, प्रसाद और भोग में थोड़ा झगड़ा हो रहा है लग रहा है। तो प्रसाद इसलिए बता रहे हैं, प्रसाद डेफिनेटली भक्तों के लिए, भोग भगवान के लिए, लेकिन इसमें प्रसाद भक्तों के लिए बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले भोग भी है। चतुर्विधा श्री भागवत प्रसाद, भगवान के प्रसाद। तो प्रसाद कब बनते, भगवान के भोग लगाने के बाद। इसमें दोनों ही है, भोग भी है प्रसाद भी है। प्रसाद इसलिए क्योंकि स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगन, भक्त लोग, हरि भक्त भगवान के भक्त लोग जब ये 4 प्रकार के प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और वो संतुष्ट होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी संतुष्ट होते जब देखते हैं उनके शिष्य लोग इस प्रकार प्रसाद लेकर संतुष्ट हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। इसलिए हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के थ्रू भोग लगाते हैं। गुरुदेव, गुरु महाराज, जी श्रील प्रभुपाद, हमारी योग्यता नहीं है भगवान को भोग लगाने की, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये हमारे जो भोग है हमने जो बनाए, ये भगवान को अर्पण कीजिए। आध्यात्मिक गुरु भोग लगाते हैं, और जब शिष्य लोग प्रसाद लेके संतुष्ट होते तो आध्यात्मिक गुरु भी कृत्वैव तृप्ति भजतो सदैव, हमेशा वो संतुष्ट होते जब देखते बाकी लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु सिर्फ दीक्षा गुरु नहीं, सभी शिक्षा गुरु के लिए हो सकते हैं। तो कोई और भक्त प्रसाद ले रहा है, वो देख के संतुष्ट होना बहुत बड़ी बात। खुद प्रसाद लेके संतुष्ट होना इजी है, लेकिन बाकी भक्तों को लोग प्रसाद ले रहे हैं ये देख के संतुष्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की जो पोजीशन है, ये काफी ऊंची है पोजीशन। तो वो खुद के प्रसाद के नहीं देखते, बल्कि देखते कि भक्त लोग प्रसाद कैसे अच्छे प्रसाद ले रहे हैं कि नहीं। प्रभुपाद हमेशा ये इसके बारे में प्रभुपाद कंसर्न थे कि उनके जो भक्त लोग हैं वो सब लोग प्रसाद, अच्छे प्रसाद मिल रहे कि नहीं, प्रभुपाद पूछताछ करते थे। एंड देन टुडे आज हम चर्चा करेंगे 5th वर्स, श्री राधिका माधवय और अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो
ये मीनिंगफुली जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 4 श्लोक चर्चा की, इससे कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं जब आप लोग मंगल आरती करते हैं? थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है प्रेयर, तो मीनिंगफुली खास करके हम फर्स्ट क्लास में बता रहे थे कि जितने भी आरती हैं, हम लोग जब न्यू डिवोटी ज्वाइन किए सबसे फर्स्ट कोर्स इसके ऊपर होता था, क्योंकि डेली जो आरती करते ये प्रेयर से एक प्रकार से, तो इसलिए ये जितने इंटेंस हम कर पाएंगे, तो मीनिंग जितना अच्छे से हम समझेंगे उतना इंटेंस प्रेयर होगा। तो श्री राधिका माधव माधवय और अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो आध्यात्मिक गुरु राधा माधव, राधा माधव की जो लीला है, मधुर जो लीला है, गुण है, रूप नाम है, ये क्या करते हैं आध्यात्मिक गुरु? प्रत्येक क्षण आस्वाद जनलोलुम पस्य, हर क्षण प्रत्येक क्षण एवरी मोमेंट आध्यात्मिक गुरु आस्वादन करते हैं। क्या आस्वादन करते हैं? राधा माधव की लीलाएं और राधा माधव की गुण रूप नाम। और ऐसे आध्यात्मिक गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस श्लोक का अर्थ है ये है कि जो आध्यात्मिक गुरु हर प्रतीक्षण हमेशा क्या करते हैं? राधा माधव की रूप गुण लीला नाम आस्वादन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बता रहे हैं श्री राधिका माधव, माधव मतलब भगवान माधव के माधव कृष्ण, और अपार, अपार का मतलब है अनलिमिटेड। राधा माधव की जो लीला है ये अनलिमिटेड है, और साथ में क्या? माधुर्य। ये माधुर्य का एक्चुअली 2 मीनिंग है। माधुर्य मतलब एक माधुर्य मतलब स्वीट, मधुर, मधुर से स्वीट, और माधुर्य मतलब शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, कंजुगल नाम। तो ये दोनों है, माधुर्य भी है और मधुर भी है, स्वीट। तो सबसे फर्स्ट ये क्या हो रहा है? राधा माधव की जो अनलिमिटेड लीला है, अनंत लीला है, ये बहुत मधुर है। आध्यात्मिक गुरु इस मधुर अनलिमिटेड लीला को आस्वादन करते हैं। इवन अगर माधव की अगर हम मीनिंग देखते हैं, माधव का अलग अलग मीनिंग है। माधव मतलब माँ, मतलब माँ अगर देखते हैं, माँ मतलब क्या है? माँ मतलब लक्ष्मी, माँ। और धव मतलब क्या है? धव मतलब कंसोर्ट या हस्बैंड। जैसे हम बोलते हैं ना विधवा, जिनके पति नहीं है विधवा, और जिसके पति है उनको क्या बोलते हैं? साधवा, पति सहित। साधवा और विधवा 2 वर्ड आते हैं। तो माधवा मतलब माँ की पति। तो माँ कौन है? लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी पति कौन है? कृष्ण या नारायण। लेकिन माधव का और मैंने माँ मतलब कभी कभी माँ ज्ञान को भी माँ बोलते हैं। माँ मतलब सरस्वती देवी, माँ ज्ञान। तो माधव मतलब जिनसे सभी ज्ञान आते हैं। लेकिन माधव का और एक मीनिंग है मधु से भी आते हैं। माधव मतलब मधु, जिनकी लीलाएं है गुण महिमा मधुमक्खियों जैसे, मधुमक्खी जैसे मधु। तो इसलिए माधव इटसेल्फ मीनिंग है ये कभी मधुर है भगवान की जो लीला है। और इसका खासियत क्या है? ये अपार अनलिमिटेड भगवान की लीला है। भगवान की जितनी भी लीला है ये अनलिमिटेड है। ये प्रभुपाद लिखते हैं सम्राट कुलशेखर की प्रार्थना है, मुकुंद मालास्तुति, उसमें एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनकी अनलिमिटेड क्वालिटीज है, अनलिमिटेड लीला है, अनलिमिटेड गुण, अनलिमिटेड रूप, अनलिमिटेड नाम है। तो जी इस भौतिक संसार में हम ऐसे किसी व्यक्ति के शरण लेते हैं जिनका जो गुण है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति का लिमिटेशन, उस व्यक्ति के चरण में आप अगर शरण लेते हैं तो आप कैसे एंथुसियाज्म मेंटेन करेंगे? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण लिमिटेड है, आप अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनको अगर उनके लिमिट तक पहुंच जाते तो अट्रैक्शन खत्म। ये भक्ति में भी होते भक्तों के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी अगर हम किसी, हो सकता है हमारे कोई शिक्षा गुरु है, हमारे साथ कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त है, उनके अंडर में हमने भक्ति शुरू की, लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उनके बराबर अच्छे क्लास देने लगते हैं, उनसे भी कभी अच्छे क्लास देते हैं, तो उनके क्वालिटीज को टच कर लेते तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जबकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये एक्सपर्टिज्म नहीं, मैंने जब भक्ति में जितना मैच्योर होते, रियलाइजेशन मैच्योर होते, लेकिन भगवान इस भौतिक संसार में ये है कि किसी व्यक्ति की लिमिटेड क्वालिटीज है, आप उनके चरण में शरण लेते हैं तो आपका एक समय अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, जबकि भगवान की क्वालिटीज अनलिमिटेड है, एंडलेस। एक्चुअली दो बोलते हैं भगवान की क्वालिटीज के लिए, एंड, अनंत, अपार। इसमें बता रहे हैं अपार। अपार मतलब एंडलेस, अपार। अपार एक्चुअली ये जो बोले श्री राधिका माधव अपार, ये शब्द आप लोग जानते हैं। पार मतलब क्या है, नदी या समुद्र के पार बोलते हैं, है ना। और अपार मतलब पार नहीं है, जैसे समुद्र के लिए बोलते पार नहीं है, नदी के पार है, बोलते नदी पार करते हैं इस पार से उस पार, लेकिन समुद्र के पार नहीं है, इसलिए अपार बोलते हैं। तो इसके बोलते एंडलेस। भगवान के जो लीला है वो है एंडलेस, जैसे समुद्र के पार नहीं दिखते हैं। मतलब आप कितना भी जाते रहे, कितना भी गहराई में जाते रहे, फिर भी खत्म नहीं होगा अट्रैक्शन, दैट इज एंडलेस। और अनंत भी बोल सकते हैं, अनंत मतलब अनलिमिटेड, मतलब आप न्यूमेरिकली आप काउंट करते हैं ये अनलिमिटेड, मतलब आप नंबर से खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे रूप गोस्वामी लिखते हैं भगवान कृष्ण के कितने गुण है, 64, लेकिन ये मेजर क्वालिटीज लिखते हैं, उसके बाद उन्होंने लिखते हैं अनलिमिटेड, ये संभव नहीं है। अगर अनंत शेष, अनंत शेष मतलब बलराम, जिनके शरीर के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, अनंत शेष। ऐसे बोलते कि अनंत शेष, अनंत समय तक अनंत भगवान की गुण महिमा कीर्तन करते, फिर भी खत्म नहीं होता है। तो अनंत मुंह में अगर गुणगान करते फिर भी खत्म नहीं होता। हमारा तो एक मुंह है, फिर भी हमें लगता है टायर्ड हो गए हम लोग कितना कृष्ण कथा चर्चा करेंगे, इतने जूम क्लासेस है, इतना ऑनलाइन क्लासेस है, कितने सुनेंगे, दो कान है एक मुंह है, थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन अनंत जो शेष, अनंत शेष बोलते मुझे अनंत मुंह से अनंत काल तक मैं अनंत भगवान की महिमा कीर्तन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अनंत भगवान की अंत नहीं मिल रहा है, इसलिए एंडलेस। एक वैष्णव सॉन्ग में लिखते हैं, ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे, ब्रह्मा 4 मुंह से भगवान के नाम जप करते, और ये देखने के बाद शिव जी भगवान के पास जाते हैं, बोले भगवान क्या आप ब्रह्मा जी को 4 मुंह दिया, हम एक माला जप करते उनका 4 माला हो जाती। ऐसे नहीं बोला, मैं मजाक करके बोल रहा हूँ मतलब उनको 4 मुंह दे दिया, उनको तो डबल 4th बेनिफिट मिल रहा है, 4 टाइम्स बेनिफिट मिल रहा है, हमें 1 मुंह दिया। तो भगवान बोलते क्या चाहते हो तुम, बोलते हमें और एक एक्स्ट्रा चाहिए, बोले कितना चाहिए, बोले 5। तो भगवान शिव जी को 5 मुंह दे देते, इसलिए शिव जी का और एक नाम क्या है, पंचानन, पंचानन। अब उस भजन में ये पढ़ सकते बाद में, कौन सा, नारद मुनि बाजाई बिना राधिका रमन नाम है, उसमें कमला सना नाचिया वाले ब्रह्मा जी आके और क्या बोलते हैं, नारद मुनि को आलिंगन करके बोलते तुम हरि बोलो बोलो हरि बोलो। और पंचानन, तब शिव जी आते, 5 मुंह वाला शिव आके नारद मुनि को बोलते तुम भी कंटिन्यू करो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान के जो गुण है अनलिमिटेड, अपार, जिसको पार नहीं है, जिस चीज के पार है उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं है। अब नदी में लोग, कितने लोग स्नान करना जाते हैं, लेकिन समुद्र में क्योंकि पार नहीं देख रहा, पानी ही पानी, आपका सीमा नहीं देख रहा है, इसीलिए इतना सी बीच में इतना महंगा है। नदियों में नदी तीर्थम उतना महंगा नहीं है। तो अपार जो व्यक्ति, जिनके गुण अनलिमिटेड, जो टच नहीं कर सकते, उस ऐसे व्यक्ति के पीछे लोग पूरे दुनिया पड़े रहते हैं। तो भगवान के गुण जो है अनलिमिटेड, इसलिए अपार, श्री राधिका माधव अपार, अनलिमिटेड क्वालिटी। तो इस भौतिक संसार में इसलिए हम देखते हैं लोग टायर्ड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इवन आप मान लीजिए किसी आप बॉस के अंडर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, टायर्ड हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसा लग रही है बेकार व्यक्ति को ये सीईओ पोस्ट में बैठा दे, कभी कभी ऐसा लगते लोग। लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं होते, कोई व्यक्ति ऐसे आज तक नहीं बोल सकते, कितने बड़े आचार्य हो, कितने बड़े भगवान के भक्त हो, कोई नहीं बोल सकता हम भगवान के हर एक गुण को हमने आस्वादन कर लिया, हर एक चीज भगवान के बारे में जान चुका, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का है अनलिमिटेड।
श्री राधिका माधव अपार और अनलिमिटेड फर्स्ट टाइम किस प्रकार है, हर एक रोज भगवान नया नया कुछ करते, ये भी एक प्रकार से अनलिमिटेड है। क्योंकि कोई बोल सकते जो ब्रजवासी हो तो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान ब्रजवासियों को भी सरप्राइज, ब्रज जना रंजना, तो उन लोग के लिए भी भगवान सरप्राइजिंग फर्स्ट टाइम देते हैं। अगर भगवान कृष्ण का अगर डेली एक्टिविटीज देखते हैं, भगवान कृष्ण के ये इसमें लिखते हैं कवि कर्णपुर लिखते हैं, उनके जो भगवान कृष्ण के डेली 8 फोल्ड फर्स्ट टाइम, उसमें लिखते हैं किस प्रकार अनलिमिटेड एक दिन में भगवान कितने लीलाएं करते, रोज देखेंगे तो अलग अलग है, ये तो डेली फिक्स फर्स्ट टाइम से नित्य लीलाएं हैं जो, जैसे उन्होंने लिखते हैं निशांत लीला है सुबह 3:36 से 6 डिटेल्स टाइमिंग के साथ लिखते हैं। उस समय राधा कृष्ण जागते हैं, और उसके बाद मतलब उस समय कौन है, सुखशारी, आप लोगों ने सुना राधा कृष्ण के जो लीला में सुखशारी 2 पक्षी है वो लोग जागते हैं। एंड देन प्रातः लीला 6 बजे से 6 to 8:36 तक माँ यशोदा आती है भगवान कृष्ण के कमरा में, और कृष्ण के सखा सखी ये सब आते हैं, उन्होंने डिटेल्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद ये मॉर्निंग फर्स्ट टाइम से, तो मॉर्निंग में ये बेसिकली 2 है प्रातः लीला से पहले, एंड देन उसके बाद इसको बोलते पूर्वाह्न लीला। पूर्वाह्न मतलब ये दोपहर तक, और इसमें कृष्ण क्या करते हैं, फॉरेस्ट वन में जाते हैं गाय चराने के लिए। एंड देन मिड डे दोपहर के जो लीला है मध्याह्न लीला, और इसमें भगवान कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं, और इसमें भी 6 प्रकार के उसके अंदर पार्ट है। एंड देन लेट आफ्टरनून उन्होंने लिखते 3:36 से 6 PM, उसमें क्या करते कृष्ण गाय चराते हैं और अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, और गोपियां जाती है भगवान कृष्ण को देखने के लिए। एंड देन उसके बाद सनसेट फर्स्ट टाइम 6 to 8:36, और कृष्ण वापस आने की तैयारी करते हैं, स्नान करते हैं, माँ यशोदा उनको सेकंड मील देते। एंड देन इवनिंग फर्स्ट टाइम 8:36 से 10:48 कृष्ण बैठ जाते हैं। एंड देन लेट नाइट फर्स्ट टाइम निशा लीला 10:48 से 3:36। तो अगर इस प्रकार देखते एक दिन बेसिकली रोज कितने फर्स्ट टाइम करते भगवान, तो इसलिए भगवान की जितने लीला है ये अनलिमिटेड लीला है। इवन अगर द्वारका में हम देखते हैं भगवान कृष्ण सिर्फ एक शहर में कितने लीला कर रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं द्वारका लीला में, जब नारद मुनि आते हैं द्वारका में, जब नारद मुनि a great wandering sage among the demigods wanted to see what Krishna was doing in each of his 16,108 palaces. Narad entered the first palace and saw Krishna being fanned by his principal queen Rukmini. Narad entered the next and saw Krishna playing with his children just like an affectionate father. And next palace, Krishna saw Krishna was preparing for bathe. And next palace, Narad Muni, this way he was moving from one palace to another palace. And Narad saw that Krishna was engaged in different activities in each of his 16,108 palaces. So probably only the Supreme Lord Krishna could display such varied first time simultaneously. तो सिर्फ एक दिन की अगर हम कृष्ण की लीला देखें, द्वारका लीला, ये कोई खत्म नहीं कर पाएगा। नारद मुनि व्यक्ति जैसे पूरे दिन घूमने के बाद भी मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए भगवान कृष्ण की लीला है। इसलिए भगवान की जो लीला है अनलिमिटेड, माधुर्य लीला गुणरूप नाम। तो ये आध्यात्मिक गुरु रोज आस्वादन करते हैं, ये आध्यात्मिक गुरु की गुण है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भगवान की कौन सी लीला आध्यात्मिक गुरु खास करके रिलीज करते हैं, माधुर्य कंजुगल फर्स्ट टाइम। तो सभी लीलाओं में श्रेष्ठ है ये कंजुगल फर्स्ट टाइम, मतलब जो युगल लीला है, माधुर्य मधुर लीला है। और ये एक्चुअली शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं ये शिक्षा देने के लिए, जयो जयो जलो रसो सर्व रसो सार परो किया भावे जार ब्रजे ते प्रकाश। तो ये सबसे श्रेष्ठ लीला है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा।
ये माधुर्य लीला क्यों श्रेष्ठ है? जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये बोलते हैं यद्यपि हर एक भक्त के पास अपना अपना जो भाव है, जिस भाव से भगवान से जुड़े हुए हैं, वो लीला बहुत ही श्रेष्ठ है, फिर भी ये माधुर्य लीला श्रेष्ठ के उदाहरण जैसे किसी कोई व्यक्ति है, वो घर पे उनका नौकर है, तो नौकर के साथ जो रिलेशनशिप है, नौकर को ऑर्डर दे तुम ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, रूम साफ सफाई कर दो, लेकिन उसके बाद देखते थोड़ी देर बाद बेल बजते, उनके दोस्त आते घर पे, तो दोस्त जैसे घर पे आते नौकर बोलते तुम चले जाओ, हम दोस्त के साथ बात करते, बहुत दिन बाद मिले। तो मतलब नौकर से जो दोस्त के साथ संबंध है वो और ज्यादा गहरा है, मतलब ये दास्य से उसके बाद क्या है, सख्य। अब दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद देखो बात 2-3 घंटा बात कर रहे हैं, फिर मम्मी आके डांटती है, क्या तुम इतने सुबह से बात ही कर रहे हो, तुम अभी तक भोजन नहीं खाया। दोस्त भी डरते, चलो चलो भोजन करने के लिए जाते हैं। तो उससे क्या, सख्य से वात्सल्य और ज्यादा ऊपर है। फिर वात्सल्य के साथ जब ऐसे कर रहे हैं तो हमारे गुरु महाराज एक बार ये बता रहे थे, बोले इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है, जब पत्नी आती है तो दोस्त को भी छोड़ देते और मम्मी पापा को भी छोड़ के चले जाते अपने कमरा में। तो इस प्रकार से अगर देखते हो वो और ऊपर है, मतलब किस चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हमारे लाइफ में। यद्यपि ये भौतिक है, भगवान के साथ ऐसे नहीं है। हर एक भक्त जिस मोड के जिस रस के द्वारा भगवान के साथ कनेक्टेड है, उनके पास वो रस ही श्रेष्ठ है। दास्य में जो भक्त उनके दास्य रस श्रेष्ठ है, सख्य में जो है सख्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जो वात्सल्य में है उनके लिए वात्सल्य भाव श्रेष्ठ है। फिर भी अगर हम देखते शास्त्र के से ये माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इस माधुर्य रस में बाकी सब आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। जो श्रेष्ठ है उसमें बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे दास्य भाव भी थोड़ा बहुत आ जाते, क्योंकि कभी कभार जो माधुर्य रस में सतियां थी, राधा रानी सेवा करती थी भगवान कृष्ण के, दास्य भाव से, तो बाकी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। इसलिए ये माधुर्य लीला आस्वादन करते हैं आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट सर्व रस सार, और ये वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रकट किए, जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए आते हैं। और रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के जो वार्तालाप, उससे हमें ये सीखने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ है कंजुगल माधुर्य भाव, और उसमें भी श्रेष्ठ के राधा रानी। लेकिन इसमें 4 चीज बता रहे हैं, लीला, गुण, रूप, नाम। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट। थोड़ा जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नाम उल्टा, ये उल्टा हो रहा है। देखिए जनरली हम क्या बोलते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, है कि नहीं? लेकिन इसमें उल्टा है, श्री राधिका माधव अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। ऐसे क्यों? जनरली आप अगर देखते हैं बहुत सारे बहुत जगह में ये है, जैसे इसमें लिखते भक्ति सिद्धांत ठाकुर के उसमें है भजन में, कृष्ण नाम रूप गुण लीला चतुष्टय गुरु मुखे सुनेले कीर्तन उदाय। बहुत सुंदर लिखते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण नाम रूप गुण लीला चतुष्टय गुरु मुखे सुनेले कीर्तन उदाय। जब हम आध्यात्मिक गुरु के मुंह से ये सुनते हैं, क्या सुनते हैं, भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, ये चतुष्ट, ये 4 चीज आध्यात्मिक गुरु के मुंह से सुनते हैं, देन हमारे हृदय क्या होते, कीर्तन उदय, तब रियल हम कीर्तन कर सकते, कीर्तनिया सदा हरि। एंड देन लिखते कीर्तिया होइले क्रमे स्मरणंग पाय, कीर्तन स्मरण काले क्रमो पथे धाय। और इसके बाद बता रहे कि जब ऐसे आध्यात्मिक गुरु से सुनने के बाद चैंटिंग करते हैं तो स्मरण आते भगवान के बारे में, तो धीरे धीरे रिमेम्बरेंस आते स्मरण के बाद। एंड देन लिखते हैं जात रुचि जन जिह्वा मन मिलाइया कृष्ण अनुराग ब्रज जननुस्मरिया। इस प्रकार से जिह्वा और मन को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जो ब्रजवासी है उनके पद चिन्ह फॉलो करते हैं, जब मन और जिह्वा को लगाते हैं, तब हम ये रिलीज करते हैं, आस्वादन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये बता रहा है कि यही उपदेश सार कराओ ग्रहण। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं ये उपदेशों का सार है। क्या उपदेशों का सार है? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आध्यात्मिक गुरु के मुंह से, गुरु मुख हो पद्मा, आध्यात्मिक गुरु से क्या सुनना चाहिए? कृष्ण नाम रूप गुण लीला, ये 4 से सुनना चाहिए आध्यात्मिक गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु से ऐसे ये 4 से सुनते हैं तब जाके सही तरीके से हम कीर्तन कर पाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु ऐसे नहीं है। देखिए ये हमारे लिए आध्यात्मिक गुरु सुनाते, हमारे लिए आध्यात्मिक गुरु कैसे सुनाते? पहले नाम सुनाते। आध्यात्मिक गुरु क्या बोलते शुरू में? चलो तुम लोग हरे नाम जप करो, और जप करते करते धीरे धीरे जब हम जप करेंगे तो रूप आ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, कोई के भक्त बोलते प्रभुपाद हम जब जप करते हैं उस समय के भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण की याद करें, उनके तस्वीर रखें, उनके फोटो रखे सामने, प्रभुपाद माना करते नहीं, सिर्फ तुम्हें शब्द को ध्यान देना चाहिए। और जब नाम सुनते सुनते रूप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रूप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिक कब आएगा ये व्यक्ति के सिंसियरिटी को डिपेंड करते हैं। हमें इतने दिन हो गया अभी तक आ नहीं रही, कब आएगा? तो वो नाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद गुण, गुण मतलब क्या है? भगवान के अलग अलग गुण देखेंगे। जैसे जैसे भगवान कृष्ण के स्पेशल लीला माधुर्य, गुण माधुर्य, वेणु माधुर्य, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान के इसमें मयूर पंख है, भगवान के टारमन स्ट्रोक, ये गुण हम देखने को लगते हैं। एंड देन लीला, जैसे हम लोग अभी बताए भगवान के डेली जो लीला है, हर एक लीला उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। तो ये आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार से हमें दिखाते, लेकिन आध्यात्मिक गुरु ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते। ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे लिए आध्यात्मिक गुरु इस ऑर्डर से पेश करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का ऑर्डर क्या है? आध्यात्मिक गुरु का ऑर्डर है ये, कौन सा ऑर्डर? किस क्रम में आध्यात्मिक गुरु करते हैं? लीला, उसके बाद गुण, उसके बाद रूप, उसके बाद नाम। इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूप, लीला, फर्स्ट है लीला। आध्यात्मिक गुरु लीला से शुरू किए, वो इतने उन्नत स्तर में है, वो पहले लीला देख लेते, एंड देन उसके बाद उन्होंने लीला देखने के बाद, जैसे राधा कृष्ण कोई, जैसे राधा कृष्ण मान लीजिए नौका विहार लीला है, या राधा कृष्ण स्विंगिंग फर्स्ट टाइम, झूलन लीला है, ये फर्स्ट देखते। उसके बाद राधा कृष्ण के गुण के ऊपर आते उनके ध्यान, उसके बाद उनके रूप आते कितने सुंदर, और उसके बाद उनके नाम लेते, हे राधा कृष्ण, इस प्रकार से। लेकिन हमारे लिए ये उल्टा है, हमारे लिए फर्स्ट नाम ले, हे राधा कृष्ण, उसके बाद राधा कृष्ण के रूप हम ध्यान को, उसके बाद गुण, उसके बाद लीला है। तो ये बहुत ही उन्नत लेवल के बात है। आध्यात्मिक गुरु की पोजीशन ऐसे मान लीजिए, तो आध्यात्मिक गुरु इतना आसान नहीं है। आध्यात्मिक गुरु की पोजीशन बहुत ही उच्च, जो लीला, गुण, रूप, नाम इस प्रकार से आस्वादन करते हैं आध्यात्मिक गुरु। और आध्यात्मिक गुरु के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आध्यात्मिक गुरु ये अनलिमिटेड भगवान के नाम लेते हैं। लीला, गुण, रूप एंड देन नाम, भगवान के नाम अनलिमिटेड है। राधा कृष्ण के खास करके राधा माधव के अनलिमिटेड लीला है, अनलिमिटेड गुण है, अनलिमिटेड रूप है, और अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड नाम भी है। तो हम थोड़ा सा ये चर्चा करें, क्योंकि इस श्लोक में फर्स्ट पार्ट में ये बता रहे हैं कि राधा माधव मतलब युगल जो रूप है राधा कृष्ण के, जो लीला है, अपार अनलिमिटेड क्या है? लीला है, गुण है, रूप है, नाम है। तो नाम, हम नाम से शुरू करते हैं। राधा कृष्ण के जुगल अनलिमिटेड नाम है, क्या क्या है? जैसे अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अनलिमिटेड नेम, राधा ये तो गिरिधर, सिर्फ कृष्ण के, हाँ ये ठीक है। हाँ, मतलब राधा माधव दोनों के अनलिमिटेड नाम, ओके, राधा गिरिधर, ओके, और राधा, ओके राधा। आप देखते कितना अनलिमिटेड नाम ले सकते हैं, आज देखते राधा राधानाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन, और गंधर्वी का गिरिधारी, ओके, गंधर्वी का गिरिधरी, ओके, और राधा पार्थ सारथी, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर जी, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा रमन, ओके,
राधा गोविंद, राधा गोविंद, ओके, राधा कृष्ण चंद्र, राधे कृष्णा, यहाँ पे भी है एक ओके, राधा कृष्ण चंद्र, और क्या है? राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल चंद्र, ओके, देन राधा राधिका रमन, राधा गोविंद, राधा गोविंद हो चुका है। हम देखते नो रिपीट, देखते कितने देर तक आप लोग अनलिमिटेड नाम राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी, ओके, राधा रास बिहारी, एंड देन राधा राधिका रमन, ओके, राधा राधिका रमन, देन राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, ओके, एंड देन राधा वृंदावनेश्वर, राधा वृंदावनेश्वर। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लग रहा है। राधा मदन मोहन, ये हो चुका है ऑलरेडी। सही, राधा लंदनेश्वर, राधा लंदनेश्वर, ओके, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ भी हो चुका है माता जी। जी, तो अनंत शेष अनंत मुंह से भगवान का अनंत नाम लेते, हम 3 मिनट में खत्म हो गया हर नाम। तो इसलिए भगवान का नाम अनलिमिटेड है, लेकिन जब हम उस प्रकार भक्ति करेंगे, भक्ति मैच्योर स्टेज में, ये नाम कंटिन्यू आते रहेंगे, खत्म नहीं होगा अनलिमिटेड नाम भगवान के। एटलीस्ट प्राइमरी नाम तो भगवान के 108 नाम है, अष्टोत्तर शतनाम। ऐसे भगवान के हजारों नाम है ना। अगर भौतिक संसार में, आप लोग नहीं, भौतिक संसार में अगर भौतिकवादी व्यक्ति को बोलते कितने फिल्म में कितने हीरो हीरोइन है, मिनिमम 100 तो बोल ही देंगे। कितने पॉलिटिशियंस है बड़े बड़े, 100 तो बोले देंगे बड़े बड़े लोग। लेकिन भगवान के हम 100 नाम अगर बोलने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु मतलब कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन ये है, ये अपार अनलिमिटेड नाम जानते हैं। उसी प्रकार भगवान के अनलिमिटेड रूप है, भगवान के अनलिमिटेड रूप है। ओके, राधा रानी के छोड़, भगवान कृष्ण का अनलिमिटेड रूप क्या क्या है बताइए, कुछ अलग अलग अनलिमिटेड रूप। जैसे एक तो गोपाल के रूप में, छोटे गोपाल, ओके, गुड गोपाल, एंड देन गोवर्धन धारी, ओके, द्वारकाधीश, ओके, द्वारकाधीश, एंड देन लॉर्ड जगन्नाथ, ओके, जगन्नाथ के रूप है, एंड देन राधा रमन जी के रूप में, ओके, राधा रमन छोटा है वृंदावन, ओके, गुड, तिरुपति, ओके, हम मेन, ओके, बालाजी, ओके, बालाजी, ओके, हाँ बोल सकते हैं। देन विष्णुमूर्ति, मेन मिस करो, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ओके, और नृसिंहदेव नहीं, ओके, तो भगवान वामन देव जी के रूप में, विट्ठल, कुर्मा। तो इस प्रकार से भगवान के अनलिमिटेड रूप है, मतलब ये अनलिमिटेड है, मतलब भगवान किसी भी रूप ले सकते हैं भक्तों के लिए, है ना। एंड देन अनलिमिटेड गुण है, कुछ अनलिमिटेड गुण चर्चा करते हैं, जैसे बांसुरी, ओके, बांसुरी हो गए, और लीला पुरुषोत्तम, संगीत, ओके, म्यूजिक, ये गुण इस टाइप के बताए। जैसे लीला पुरुषोत्तम में सभी आ जाते हैं, रमेश गुण मतलब जैसे फ्लूट हो गए, फिर म्यूजिक हो गए, डांस हो गए, भक्त वत्सल एक प्रकार से मर्सी हो गए। लेकिन गुण मतलब क्या, जैसे अलग अलग कला है भगवान के अंदर, जैसे कृष्ण बलराम, प्रभु फाइटिंग, अलग अलग भाषा, युद्ध कला, ओके, गुड, रास बिहारी, केश सज्जा, केश सज्जा, ओके, रास बिहारी प्रभु जी, लैंग्वेजेस, रास बिहारी मतलब मेनली नृत्य करते हैं, ओके, और कुछ अलग कला है, मक्खन चोर, चोरी करना, ओके, चोरी करना, हाँ, चोरी करना इन जनरल, रथ सारथी, सारथी, ओके, गुड, हाँ, ड्राइविंग, ओके, और क्या गुण है भगवान में? लैंग्वेज हर तरह की लैंग्वेज जानते हैं। अच्छा, कौन से लैंग्वेज बोले? पॉलिटिशियन, बर्ड्स की, एनिमल्स की, मींस इस तरह से, ओके, पॉलिटिक्स, बिगेस्ट चीटर, क्लेवर, मिठास भरी वाणी, ओके, क्लेवर, मिठास, वाणी में मिठास, ओके, गुड। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं भगवान के जो गुण हैं, गुण अनलिमिटेड,
हम ये फर्स्ट श्लोक में विचार थे कि गुण अर्णव से, आध्यात्मिक गुरु के अंदर भी इस प्रकार है, वो क्या है, अनलिमिटेड गुण है भगवान के। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सर्व महागुणगण वैष्णव शरीर है, क्योंकि एक वैष्णव हमेशा भगवान कृष्ण के ध्यान करते, मेडिटेशन करते, इसलिए भगवान कृष्ण के अंदर अनलिमिटेड गुण है। वो सारे गुण ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी भक्त में भी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेजर 26 क्वालिटीज बताई। तो भगवान में अनलिमिटेड क्वालिटीज है, अनलिमिटेड गुण है एक एक प्रकार से, और अनलिमिटेड लीला है। डेफिनेटली भगवान का अलग अलग लीला है, राधा माधव के अनलिमिटेड लीला है। तो फाइनली ये छूट गया, अभी इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं आप लोगों से। अनलिमिटेड लीला है, अनलिमिटेड लीला मतलब अलग अलग प्रकार की लीला है। राधा माधव की खास करके बात है, राधा कृष्ण का अलग अलग लीलाएं बात है कुछ, जैसे अब खैर वो तो यशोदा मैया के साथ है, दामोदर लीला तो नहीं, राधा माधव के हे भगवान के अनलिमिटेड, राधा माधव के थोड़ा सुनना, क्योंकि इसमें फर्स्ट है श्री राधिका माधव और अपार माधुर्य लीला। तो मधुर यश में जो लीला है, थोड़ा एक लाइन एक रासलीला भगवान ने राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था, राधा कुंड का आविर्भाव। सब एक्सपर्ट है लीला में, हम जानते हैं, थोड़ा एक एक करके सुनते हैं। ओके, सबसे गुड झूलन यात्रा लीला है। उसके पहले कौन, स्वाति माता जी बताते सबसे फर्स्ट कौन सा? रासलीला। ओके, रासलीला। ओके, एंड देन होली खेली थी। ओके, होली लीला। ओके, एंड देन कृष्णा राधा बन गए थे और राधा जी कृष्णा बन गए थे। ओके, ये गोपाष्टमी के समय वो लीला है। ओके, गुड। और मान भंजन। ओके, मान भंजन, कुसुम सरोवर के जो लीला है, कृष्ण फूल लेने के लिए जाते। ओके, और राधा कुंड। ओके, गुड। राधा कुंड के जो उत्पत्ति गुरु महाराज ने वो बताया था ना कि कृष्णा जाते हैं और वो वहां से क्या है, उनकी इन लॉ, राधा रानी की जो मदर इन लॉ और वो सिस्टर इन लॉ है, उनसे वो मान भंजन जटिला कुटिला के साथ बहुत सी लीला है। बांसुरी की लीला है, बांसुरी वाली लीला। हाँ, कृष्ण के तबीयत खराब हो जाते, ये 3-4 लीला गुरु महाराज विश्वनाथ ठाकुर से। कुरुक्षेत्र का विजिट का कृष्णा का राधा वहाँ गए थे मिलने के लिए। ओके, वेरी नाइस। जो रथ यात्रा की लीला है, हाँ, जो कुरुक्षेत्र वृंदावन ले जाते हैं, इम्पोर्टेंट। हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला नहीं, हम बोले राधा कृष्ण के जिसमें अच्छा, ब्रह्म। सॉरी। एक जैसे हल्दी के पोखर पीली पोखर बरसा में। और एक राधा रानी, हाँ, जब कृष्णा की तबीयत खराब हो जाते और ये बताए कि किस राधा रानी के हाथ से खाने से तभी कृष्ण के इस प्रकार। और जब सबसे पहले राधा रानी आईज ओपन करती हैं, पहले आईज में। ओके, वेरी नाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राधा रानी सबसे पहले भगवान कृष्ण के इस तरफ देखना चाहती थी, इसलिए एक्चुअली उस समय क्या हुआ था, सबसे पहले तो उन लोगों ने ट्राई किया, नारद मुनि गए थे उनके घर पर, नारद मुनि की गोद में बैठाया और ये सोचा चलो नारद मुनि की गोद में बैठा से आंखें खुल जाए, लेकिन नारद मुनि बोले मेरे तो संभव नहीं है। तब जाके कृष्णा जब आएंगे तभी इनके आंखें खुलेंगे। ओके, और मेघा माता जी एक था कि वो मटके में छेद किया था, कुछ ऐसा राधा रानी का मान। कृष्ण का भूखार, मतलब राधा रानी तो ऐसे खराब लग रहा है कि सब लोग राधा रानी की निंदा करते हैं कि राधा रानी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि 100 छेद वाला मटकी में यमुना से पानी लेके भगवान कृष्ण के सर पर लगाएंगे तो भूखार कम होगा। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जोटिला कुटले भी ट्राई किए, जितने लोग ट्राई किए, मटकी में जैसे पानी भरते पानी तुरंत गिर जाता है। तो माँ यशोदा कहती है चलो हम जाते हैं हमारे पुत्र के लिए। तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भी कृष्ण है। बोलते नहीं मम्मी जाएगी तो नहीं होगा। तब बोलते राधा रानी से क्यों नहीं ट्राई करते हैं? तब जटिला कुटला राधा रानी के नाम बोले, सती स्त्री में। तब राधा रानी कृष्ण की याद करती है और बहुत मतलब कृष्ण के चिंतन करते करते मटकी में पानी उठाते, 100 छेद 100 छेद, एक बूंद भी पानी नहीं गिरते, और उस पानी जैसे कृष्ण के सर में लगाते कृष्ण ठीक हो जाते। मतलब कृष्ण प्रमाण करते राधा रानी सबसे श्रेष्ठ सती चेस्ट वुमन। तो भगवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध जोड़ने से व्यक्ति प्योर हो जाते हैं, कभी इम्प्योर नहीं होते। उस लीला के द्वारा भगवान शिक्षा देते। और एक उसी
बताएं। एक विरजा नदी वाला था कि वो विरजा नदी के साथ में कुछ पिंगल हो रहे थे तो राधा रानी को पता चला था, तो राधा रानी वो फिर है आई थी उस जगह पर हाँ मिलने के लिए। तो वेरी नाइस, वो है गोलोक वृंदावन के वो लीला है, जब प्रकट होने से पहले वो लीला है ना। इस प्रकार राधा रानी हाँ पुल बनाया था राधा रानी जी के कहने पे। क्या बनाया था? ब्रिज, पुल। हाँ वो ये कौन सा रामलीला कि राधा रानी ये विश्वास नहीं कर रही थी तुम ही राम हो, बोलते तुम अगर राम हो तो अभी प्रमाण करके दिखाओ, इस कुंड के ऊपर ब्रिज बना के दिखाओ, हनुमान बानर सेना दिखाओ। राधा कुंड एंड राधा कुंड श्याम कुंड का अपीयरेंस। ओके, और इष्टासुर वध वो लीला है, गुड, और इष्टासुर वध लीला है। और एक और कि जब कृष्ण बीमार हुए थे तो मतलब उन्होंने सिर में दर्द हो गया था, तो उन्होंने नारद जी से कहा था कि कौन से भक्त हैं जो अपने चरणों की मुझे धूल देंगे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो सबके साथ गए थे, देन वो फिर एंड में गोपियों और राधा रानी के पास गए थे, तो राधा रानी गोपियों ने अपने चरणों की धूल दी थी, देन वो सही हुए थे। ऐसा ओके, इस प्रकार से बहुत सारे राधा कृष्ण के साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर फर्स्ट टाइम थे। वंशी वृष्टि एक फर्स्ट टाइम, चूंकि अभी सब लीला में मग्न हो गए तो एक फर्स्ट टाइम से वो भी हमारे गुरु महाराज ने बताया। वंशी वृष्टि मतलब बांसुरी की बारिश हुई। तो राधा रानी के घर पे एक बार कृष्ण गए थे, जो एक्चुअली ये लीला है, हम लोग अभी उस लेवल में नहीं है, फिर भी चूंकि ये लीला के बारे में चर्चा हो रहा है। कृष्ण और जो राधा रानी की शादी हुई तो अभिमन्यु वो भी एक्चुअली कृष्ण है, इसलिए हमें कभी नहीं समझना चाहिए कृष्ण ये अनैतिक है, ये एक प्रकार से कृष्ण के प्रकाश है, लेकिन ये लीला आस्वादन करने के लिए कृष्ण एक्सपांड किए उनके रूप में। तो वो राधा कृष्ण जाते हैं मिलने के लिए, जब जाते हैं ललिता जटिला कुटिला ने ये देख लेते, जब जटिला कुटिला ये देख लेते बोले कृष्ण तुम्हारे कमरे में हमने आवाज सुने, तो उनको जाके बोलते हैं वो राधा नहीं कृष्ण तो नहीं आए, तो घर ढूंढ रहे थे, कृष्ण घर के अंदर सर्च कर रहे थे, तो देखा एक बांसुरी पड़ा है बेड के ऊपर, बोलते कृष्ण आज तुम रंगे हाथों में पकड़ गए। और ललिता जटिला कुटिला ने पूरा गांव के सबको बुलाया, देखो देखो हमारे जो बहू है ये पकड़े में। और राधा रानी तो बहुत डर रहे क्या करेंगे। उस समय उन लोग विचार किसके बाद किया, वो पंचायत में उस समय हेड कौन है, पूर्णमासी, क्योंकि पूर्णमासी सबसे एजेड वुमेन थी वहां पर। ये कौन है, संदीपनी मुनि की माँ पूर्णमासी, योग माया के प्रकाश। तो पूर्णमासी से शिकायत लेकर गए ये जटिला कुटिला की कृष्ण हमारे घर पे आए थे राधा रानी से मिलने के लिए, ये बांसुरी है उनके बेड में छोड़ के गए, प्रमाण है, आप आज तुम्हें पनिशमेंट देना है। तो पूर्णमासी मुस्कुराने लगती है। आज जटिला कुटिला बोलते हम तुम्हें शिकायत कर रहे हैं, आप ये ज्येष्ठ होकर कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। तो जटिला कुटिला तुम्हें पता नहीं काल रात बांसुरी की बारिश हुई थी हमारे गांव में, बोला ऐसे है, हाँ देखो तुम्हारे कमरा में चेक करो। जटिला उनके कमरा में जाकर चेक कर देंगे, हजारों बांसुरी उनके बेड में, कुटिला देखे अनलिमिटेड बांसुरी उनके रूम में। कब बारिश हुई थी, बांसुरी की बारिश। तो इस प्रकार से कृष्ण राधा रानी की ये ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो आध्यात्मिक गुरु जो है, आध्यात्मिक गुरु ये लीला आस्वादन करते हैं। इस प्रकार की जो लीला है प्रत्येक क्षण 24 आवर्स आध्यात्मिक गुरु हर क्षण ये लीला गुण रूप और नाम आस्वादन करते हैं, प्रत्येक क्षण आस्वादन करते हैं। अब देखिए हम अभी नाम रूप गुण लीला 10 मिनट 15 मिनट चर्चा किया, फिर भी आपको फेस देखकर लग रहा है कितने खुश हो गए। और आध्यात्मिक जो उन्नत भक्त है प्रत्येक क्षण 24 आवर्स इसी से सिर्फ आस्वादन करते हैं, वो सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हैं। प्रत्येक क्षण या अनुक्षण बोलते हैं, प्रत्येक क्षण अनुदिनम प्रतिदिनम सततम कीर्तयन्त माम। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक गुरु कैसे कर रहे हैं, इसको प्रचार भी एक प्रकार से भगवान की लीला है। ये चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन दिए, ये संकीर्तन और रासलीला दोनों अभिन्न है, रासलीला और संकीर्तन में कोई भिन्न नहीं। भगवान कृष्ण जो बंसी बट में वृंदावन में रासलीला की थी, निधिवन सेवा कुंड, और श्रीवास ठाकुर के जो आंगन में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन की, दोनों एक ही जगह। श्रीवास ठाकुर के आंगन को रास मंडली माना जाता है, इसलिए संकीर्तन या प्रचार में जो लग रहे थे, प्रचार के बारे में सोचते हैं या मंदिर बनाएंगे प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये भी एक प्रकार से 24 आवर्स भगवान की सेवा में लगे हैं। तो ये अनुक्षण इंपॉर्टेंट है, प्रतीक्षण। तो हम भी लगे रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इसी में एक्सपर्ट है, 24 आवर्स लगे रहते हैं।
भगवान की लीला गुण रूप नाम चिंतन में, जबकि हम कभी कभार भौतिक चीजों में, कभी कभार अधिकतर भौतिक चीजों में हम एंगेज हो जाते। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो मृत्यो क्रमेणा रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजित अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। तो उन्होंने बोलते उपदेश सारम, सभी उपदेशों का, जितने उपदेश है, वेद वेदांत उपनिषद पुराण, सार क्या है? The essence of all advice is that one should utilize one's full time 24 hours a day in nicely क्या है? Krishna's name, form, qualities and eternal pastime। ये रूप गोस्वामी लिखते जो एग्जैक्टली इस श्लोक में बता रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु भी प्रतिक्षण नाम रूप गुण लीला में 24 आवर्स। और ये है एक्चुअली सार है, स्मर्तव्य सतत विष्णुर विस्मर्तव्य न यातु चित सर्व विधि निषेधाय और एतावत एत निषेधा। ये सभी शास्त्रों में जितने श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है सभी पुराण उपनिषदों में, और सभी का सार ये है, क्या है? हमेशा भगवान की याद करना, उनके नाम रूप गुण लीला को ध्यान रखना। एंड देन नेक्स्ट क्या करते हैं? ये किस प्रकार याद रखते हैं? आस्वादन करते हैं। इंपॉर्टेंट, आस्वादन करने का मतलब क्या है? रिलीशिंग, टेस्टिंग नहीं। हम टेस्ट करते हैं हर एक चीज को भौतिक संसार में, ये कैसे होगा, ये एक बार टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो विषय है, रिलीश, आस्वादन, क्योंकि ये नेक्टर जैसे अमृत को हम आस्वादन करते हैं। जो भौतिक संसार में जो वस्तु उसको हम टेस्ट करते, जबकि अमृत जैसे जो चीज है उसको हम आस्वादन करते। हम नाम रूप गुण लीला तो कम ही आस्वादन कर पाते, लेकिन प्रसाद जरूर आस्वादन कर पाते, है ना उस चीज का। लेकिन अभी आस्वादन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्वादन? आस्वाद मतलब जैसे जब आप कुछ खाते इतना अच्छा हो जाता है, स्वाद स्वाद, वो इतना स्वादिष्ट है, मतलब उसमें खो जाते हैं। मतलब उस समय कुछ भी होगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। मान लीजिए आपको भूख लग गया है, आप मान लीजिए फास्टिंग करें दोपहर तक या शाम तक, उसके बाद आपको इतना स्वादिष्ट भोजन मिल गया, अब कुछ भी हो जाए, फोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप फिर भी उठाएंगे ना, उस समय भोजन करेंगे। लेकिन जब नाम की बात आते, नहीं नाम मतलब छोड़ देते, पहले बात कर लेते और गुण लीला और रूप तो छोड़ दीजिए, नाम में ही फेल है। लेकिन आस्वादन मतलब वो है, मतलब एकाग्र होकर, मग्न होकर जब करते हैं उसको आस्वादन बोलते हैं। और जैसे कभी कभी हमारे भक्त उदाहरण देते, जब करते समय, नाम लेते समय नींद आ जाती है। ये सभी भक्त के प्रॉब्लम है, हम सभी का। लेकिन कभी ऐसे हुआ कि गुलाब जामुन और स्वीट रस खाते खाते नींद आ गए? ऐसे हुआ था किसी का? बहुत थक गए, जन्माष्टमी के दिन, अगले दिन बिल्कुल बहुत टायर्ड है, सो ही नहीं पाए, फिर रसगुल्ला गुलाब जामुन आधा रसगुल्ला लेते लेते सो गए। ऐसे में एक भक्त को जानता हूँ, खाते खाते सो जाते थे। लेकिन जनरली ऐसे बहुत कम ही देखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आस्वादन। तो आध्यात्मिक गुरु, उनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि आध्यात्मिक गुरु लीला गुण रूप ये सब आस्वादन करते, उसमें मग्न हो जाते। जैसे हम आध्यात्मिक गुरु के ये रूप, क्योंकि वो रियलाइज की इस चीज को। जैसे आप अगर देखते आध्यात्मिक गुरु तत्व में चैतन्य महाप्रभु सेंसलेस हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु कितने लीला है कि वो आस्वादन मग्न हो जाते, सेंसलेस हो जाते थे। किसी को याद है कुछ लीला चैतन्य महाप्रभु के, कि वो लीला स्मरण करते करते उन्होंने बिल्कुल खो गए? बताए कुछ। रथ यात्रा के समय जब नृत्य कर रहे हैं, उसमें रथ यात्रा के उधर नृत्य करते वक्त। ओके, लेकिन कुछ है एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस भूल गए चैतन्य महाप्रभु ऐसे। जब नित्यानंद प्रभु उनको ले गए थे वहां नदी में, तो वो समझ रहे थे ये यमुना नदी है। वेरी गुड। हाँ, तो गंगा का यमुना समझ रहे थे चैतन्य महाप्रभु। ओके, एंड देन जब प्रभु जी वहाँ जगन्नाथपुरी में when he see those tombs, रेत के देखते थे तो उनको गोवर्धन याद आ जाता था। then he would चटक पर्वत जो है अभी टोटा गोपीनाथ के पास, वो पर्वत देख के तेज चैतन्य महाप्रभु दौड़ के जाते थे, भाग के, ये तो गोवर्धन आ गए। ओके, नाइस। और समुद्र में चैतन्य महाप्रभु जब लीन हो गए थे लास्ट में, समुद्र चैतन्य महाप्रभु चले गए समुद्र में, और उनको वहां से जाके, आप लोग गए थे लास्ट जगन्नाथपुर में, कहाँ मिले चैतन्य महाप्रभु को? चंद्रभागा में। चंद्रभागा कहाँ पे? कोणार्क के पास में। वहां पे
स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको मछली पकड़ने वाला उन लोग नेट पे चैतन्य महाप्रभु मिला। ओके, और जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी आए थे तो जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो गए थे, वो मतलब अनकॉन्शियस हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, गिर गए थे। Yes. जगन्नाथ को स्पर्श कर लिया, पांडव लोग उनको मारने के लिए आए। और ऐसे बहुत से लीला है। रामानंद राय को जब आलिंगन करते हैं भूल जाते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु वो रामलीला का प्ले कर रहे होते हैं ना, देन उस टाइम पे वो भूल जाते हैं कि ये हनुमान जी। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं आध्यात्मिक गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि नित्यानंद प्रभु के, वो भगवान की लीला में आस्वादन करते, रेलिश करते। मतलब रेलिश करने का मतलब बाकी चीज उनको डिस्टर्ब नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन को, रघुनाथ सबको देखिए एक प्रकार फेमस। रूप गोस्वामी के फर्स्ट टाइम जो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे वैष्णव अपराध के लिए, उसमें क्या है, रूप गोस्वामी जप कर रहे थे और जप करते करते क्या देख रहे हैं, राधा कृष्ण राधा रानी फूल तोड़ने के लिए गए और उस समय ऊपर के एक जो पेड़ पकड़ नहीं पा रहे थे राधा रानी, और भगवान कृष्ण बोलते मेरे कांधे के ऊपर चढ़ जाओ। तो राधा रानी चढ़ के वो जब वो उसको जो पेड़ के जो शाखाओं को पकड़ लिया, कृष्ण वहां से नीचे से निकल और राधा रानी लटक रही थी और ये रूप गोस्वामी आश्वासन कर रहा है। ये प्रभुपद बताए। और कोई भक्त वहां से गुजर रहे थे, उनको लगा था रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहे थे, इसलिए अपराध हो। तो खैर ऐसे आज जो इस प्रकार से ये आस्वादन करते हैं, तो ये नाम रूप गुण लीला रियल आस्वादन। प्रसादम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी भगवान की लीला है, लेकिन राम रूप गुण लीला ये काफी इम्पोर्टेंट। आपके पास पीकेएस लोगो है, दे दो मेरे को। ओके, तो इस प्रकार से ये आस्वादन करते हैं। जैसे विल जस्ट फिनिश विथ वन, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की लीला में, जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वृंदावन में थे, उस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि मना रहे थे। जैसे तिरुभाव तिथि हम लोग करते हैं, हाफ डे फास्टिंग, उसके बाद तिरुभाव तिथि। तो उनके जो बिहारी, उनके सेवक, तो गौर किशोर दास बाबा जी काल सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि हम क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा फेस्टिवल त्योहार मनाएंगे। कहाँ पे, नवद्वीप में। जितने वैष्णव साधु महात्मा वैष्णव सबको निमंत्रण करो काल आने के लिए। सारे वैष्णव लोग आ गए, काल महोत्सव मना रहे। गौर किशोर दास बाबा हमारे सबसे श्रेष्ठ वैष्णव उस समय का, आप सोच सकते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते थे उनके पास, इतने पावरफुल थे। तो सारे साधु महात्मा जितने साधु थे, बैरागी, सब लोग आ गए। काल बहुत बड़ा फीस्ट महोत्सव होंगे। और जाके दोपहर तक उपवास करने के बाद तो महाप्रसाद, महाप्रसाद कहाँ है, महाप्रसाद गोविंद बोल रहे हैं। तो बोलते बाबा जी महाराज प्रसाद कहाँ पे? बोले किसने बोला प्रसाद? बोला आपने बोला महोत्सव। हाँ महोत्सव किस चीज के? बोले हरे नाम की महोत्सव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ये आस्वादन करो और ये खा के निकल जाओ, ये महाप्रसाद है। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते। गिरिराज प्रभु बोलेंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा अगले दिन से। तो लेकिन उनके कहना ये आध्यात्मिक गुरु की स्तर है। देखिए वो किस चीज को आस्वादन करते हैं, तो कहने का मतलब इतने पावरफुल उनकी पोजीशन। और इसलिए क्या करते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो है प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, ये काफी इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक गुरु। ये किस प्रकार आस्वादन करते हैं? लोलुपस्य। लोलुपस्य मतलब क्या है? देखिए लोलुपस्य इसमें एस्पायर लिखे, लेकिन लोलुप शब्द आते कि इसमें लालच, लोभ, लोभ, ग्रीडीनेस। तो आध्यात्मिक गुरु ग्रीडी है इस चीज को आस्वादन करने के लिए। जैसे हम खाना देखिए उपवास के बाद ग्रीडी हो जाते खाने के लिए, उसी प्रकार जब लीला सुनते हैं, जब कथा सुनते हैं, जब भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, गुण के बारे में चर्चा हो रहा है, तो वो ग्रीडी हो जाते हैं इस चीज को सुनने के लिए। ये आध्यात्मिक गुरु की गुण है। प्रभुपाद के ये गुण था। भक्त सिद्धांत ठाकुर वृंदावन गए थे और उनके जितने सन्यासी शिष्य थे, जितने उनके बड़े बड़े शिष्य थे, प्रवचन दे रहे। और भक्त सिद्धांत ठाकुर जब प्रवचन देते थे ना, ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस है। नाम रूप गुण लीला इतने खो जाते थे, कभी 4-5 घंटे भी प्रवचन देते थे, प्रसाद के टाइम भी पार हो जाता था। ये बहुत उन्नत स्तर में थे भक्त सिद्धांत ठाकुर। और वृंदावन गए थे परिक्रमा, मतलब सब लोग प्रोग्राम और प्रवचन दे रहे, 1 घंटा 2 घंटा। धीरे धीरे सारे सन्यासी शिष्य सब लोग निकल, एक राधा कुंड देखने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए चले गए। और उन्होंने आंख खोल के देखे, सिर्फ 1-2 लोग बैठे हैं और उसमें कौन है? अभय बाबू प्रभुपाद बैठे थे, जबकि उनकी दीक्षा नहीं। और प्रभुपाद को बताया कि तुम्हारे इसी गुण के कारण मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। कि इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु
कि आस्वादन करते हैं। ये प्रभुपाद इस प्रकार थे, है ना। और ये किस प्रकार आस्वादन करते थे, लोलुपस्य, लालच जैसे, ग्रीडीनेस जैसे, इस प्रकार आस्वादन करते थे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत कोट के। अगर कृष्ण भक्ति में हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते तो एक ही क्वालिफिकेशन की जरूरत है, वो है क्या, ग्रेट। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। ये आप लोग इसका चैतन्य चरितामृत तो इसका पर्पस बोलिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ये इतना महत्वपूर्ण इसको बता रहे हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस ये एक ही चीज से हम परचेस कर सकते हैं। मूल्य बोलते हैं ना, प्राइस। मूल्य क्या है, एक कलम, एक ही मूल्य है, एक कीमत है, वो क्या है, लोल्यम, लोलुपस्य, सेम चीज बता रहे। एक इज ग्रेडीनेस। तो भौतिक संसार में ग्रेडीनेस बहुत ही खराब है, तो स्पिरिचुअली ग्रेडीनेस टॉप मोस्ट है। एक ही ग्रेडीनेस इस चीज के द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक संसार में जो ग्रेडीनेस है ये खराब है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रेडीनेस, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो लालच है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भौतिक चीज में जो लालच है ये सबसे डेंजरस है। क्या बोलते रूप गोस्वामी, प्रत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्र जनसंग से लोल्यम षडवीर भक्ति, ये विनाश कर देते भौतिक जो लोभ लालच। और आध्यात्मिक जो लालच ये भक्ति में हमें आगे बढ़ा देते, फिर आगे नहीं, उसके बिना हम भक्ति को खरीद ही नहीं कर सकते। एक ही मूल्य, एक ही प्राइस। तो इसलिए ये इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु किस प्रकार राधा माधव की जो लीला है, अनलिमिटेड लीला, गुण रूप नाम हमेशा आस्वादन करते, प्रति क्षण आस्वादन करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण हम वंदना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो वेरी मच रसानंद प्रभु। ये जो श्लोक हैं, स्पेशली दीज टू इन गुरु अष्टकम, दे आर वेरी नाइस श्लोकास। और मैं कई बार देखता हूँ कि जो डिवोटीज हैं यूजुअली they go very esoteric deep, और किसी को समझ में कुछ नहीं आता है, but you explained them very nicely, Prabhuji. Or it was very so nice to see the sequence of a sadhak and the sequence of a guru, how they go. It was so very wonderful, Prabhuji. और सबसे आपने लीला गुण नाम सब करवाए, और हमारी फुस हो गई 2-3 मिनट के बाद ही, प्रभुजी। So we know where our position is, but it was very nice, Prabhuji. I wish we had more 2-hour class every week. We are very grateful to you. Every day Prabhuji की class 7:30 बजे खत्म होती है, then 7:30, 7:35 Prabhuji comes here. So we are very, very grateful to Prabhuji. Vande Guru Shri Charanarvindam. So we will chant a loud Hare Krishna Mahamantra to thank Rasanand Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram. His Grace Rasanand Prabhu ki jai. Jagat Srila Prabhupada ki jai. Thank you everyone. Thank you, Prabhuji. So, thanks Prabhuji. हाँ, these are very nice श्लोक। See, mostly जब गुरु अष्टकम का था मेरे ध्यान में, then I heard 1 or 2 lectures from other devotees, but they went into deep esoteric things without realizing what is the qualification of those who are listening. And then I thought what to do, whom to call, and then the only name which came to my consciousness was Rasanand Prabhu, and I feel very grateful. Somehow the name came, and कितना सुंदर देखिए इन्होंने समझाया। और ये जितना हम गाढ़ा ये करके हम गुरु अष्टकम गाएंगे सुबह सुबह, so that much we will get from name to the रूप like this. So thank you so very much. और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी, हमारे 108 हो गए बुकिंग जो हमने सोचा था DYS का. So finally we have crossed 108. So Krishna willing, we will start our online seminar tomorrow 5 to 7 p.m. तो आप लोग सब लोगों को
क्या कहते हैं, you're all welcome to join us in the DYS seminar. So we are starting tomorrow, Saturday 5 to 7, Sunday 5 to 7, each weekend we are starting. So that is our little offering to Srila Guru Maharaj. So आज हमारे 108 registration पूरे हो गए. So thank you so very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much, Prabhu. Thanks, Prabhuji. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी।